سب سے اولین ترجیح جو ہے دینی تعلیم کو ہے، کیونکہ اسکول جاتا ہے ظہر تک ایک ورڈ بھی اسلام کا نہیں پڑھتا ہے۔ یہ تعلیم کے اندر کوئی فیس وغیرہ نہیں ہے۔ کچھ جہاں سیمانچل اسلامک ڈیولپمنٹ میں کافی آگے ہے، لیکن ایجوکیشن جو بیسک لیول ہے وہ بہت ہی زیادہ کمزور ہے، اور بچے جو ہے در بدر بھٹکتے ہیں، اور یہاں کے لوگ لگاتار پلائن کر رہے ہیں اور اپنے آپ کو سمجھ بھی نہیں پاتے ہیں، اور جس دین سے جڑے ہوئے ہیں اس کو بھی نہیں سمجھ پاتے ہیں۔ آج ہم بات چیت کریں گے، دیکھ سکتے ہیں اسلامک ایجوکیشن بورڈ آف انڈیا کے ڈائریکٹر ہیں، ان سے ہم بات چیت کریں گے۔ سر، سب سے پہلے آپ اپنا پریچے دیجیے، کیا نام ہے اور کہاں سے آئے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں حسن یار محمد اظہری، کیرلا پالکاڈ صوبے میں جامعہ حسنیہ اسلامیہ اسلامک آرٹس اینڈ اکیڈمی فار آرٹس اینڈ اسلامک اسٹڈیز میں پرنسپل ہوں، اور ساتھ ہی ساتھ دلی میں قائم اسلامی تعلیمی بورڈ آف انڈیا، اسلامک ایجوکیشن بورڈ آف انڈیا کے قومی ڈائریکٹر ہوں، نیشنل ڈائریکٹر ہوں۔ اور جیسے کہ معلوم ہے ہمیں، جی دین الاسلام کے اندر تعلیم پر زور دیتے ہیں۔ اسلام کے نظریہ علم عام کرنے پر ہے، اور ساتھ ہی ساتھ نونہالان امت کو چھوٹے عمر میں سکھانے اور پڑھانے کا ماحول ہر محلے گاؤں میں پیدا ہونا، یہ ہمارا نظریہ ہے۔ اچھا سر، میرا ایک سوال ہے، جس طریقے سے سیمانچل کافی پچھڑا علاقہ ہے اور یہاں پہ ایجوکیشن کی بیسک لیول جو ہے وہ کافی زیادہ کمزور ہے، اسلامک ایجوکیشن بورڈ آف انڈیا کے طرف سے کیا کچھ مطلب کہ سوغات رہے گا، کیا کچھ یہاں کے لوگوں کے لیے خوشخبری رہے گی؟ خوشخبری تو یہ ہے، بنیادی طور پر ہم لوگ ابھی اصالتاً ہر محلے میں، ہر مسجد، گاؤں میں میکسیمم ہم سے جو ہو سکے ابھی ہمارے یہاں کے فیلڈ آفیشل ہے مولانا طارق عزیز صاحب، ان کے ذریعے مکاتب قائم کرانا، اور اس کے لیے ایک اچھے مکان کے اندر بھی بچوں کو سسٹم کے اندر بچوں کو پڑھانے کے سسٹم، یعنی 5 سال کے بچے اس میں ایڈمیشن دینے پر ان کو عربی اکشرمالا پڑھائے جاتے ہیں، اور اردو کے بھی اکشرمالا پڑھائیں گے پہلے سال میں۔ دوسری سال میں یہ بچوں کو اسلامی عبادات سے متعلق جانکاری کے لیے فقہ کے اور اخلاقیات، آج کل قیمت اور اخلاقیات میں یہ پنپنے والے نوجوان طبقے بہت پیچھے ہیں، تو ان میں اپنے ماں باپ کے بارے میں، بڑے بزرگوں کے بارے میں، اساتذہ کے بارے میں، اور نیک اور اچھی تعلقات کے بارے میں، اس طرح کی نیکیاں اور اخلاقیات سکھانے کا ماحول ہے، یہ سسٹم اس کے اندر ہے۔ اور اس کے ساتھ اور بھی کتاب تھے، عقیدے میں کتاب ہوگی، اور تاریخ اسلام میں کتاب ہوگی، اور قرآن پاک کے صحیح تلاوت اور قراءت کے لیے تجوید میں کتاب ہوگی۔ اس کے ساتھ یہ 5 سال کا ایک مرحلہ ابتدائی، اور اس کے بعد ثانوی 7ویں 8ویں جماعت تک، پھر اس کے بعد 10ویں جماعت تک، اس طرح پڑھائی سسٹم ہے۔ اس میں یہ مذکورہ موضوعات باقاعدہ پڑھائی جائے گی، اور ساتھ ہی ساتھ عصر کے تقاضے کے انوسار ماڈل ایجوکیشن بھی ساتھ دینے کا سسٹم ہے، اور ہمارے IEBA کے انڈر میں ہر تعلیم کی سویدھا باقاعدہ موجود ہے۔ معلوم ہوگا کہ کیرلا میں نالج سٹی اور جامعہ مرکز ثقافت سنیہ، جامعہ سعیدیہ اسلامیہ اور دیگر بڑے بڑے دینی ادارے ہیں، درسگاہیں ہیں اصلی، لیکن وہاں سب عصری تعلیم کا بھی ماحول ہے، اچھے انداز میں وہاں پڑھائے جاتے ہیں، اور وہاں سے فارغ ہونے والے کافی ڈاکٹرس ہیں اور انجینئرس ہیں، اور اونچے اعلیٰ مراتب کے مناصب کے دفتروں میں کام کر رہے ہیں۔ اس طرح سسٹم تعلیمی معیار کو اچھے رکھنے کے ساتھ ساتھ اونچائی تک پہنچانے کا ایک بہت بڑا سسٹم۔ اچھا سر، دینی تعلیم صرف ہوتی ہے یا دنیاوی بھی ہے؟ دونوں ہے، دونوں ایک ساتھ ہے، لیکن سب سے اولین ترجیح جو ہے دینی تعلیم کو ہے، کیونکہ مسلمان اپنے عقیدہ اور طرز عمل
पर ज़्यादा ज़ोर देता है, ख़ासकर नमाज़ पढ़ने का, रोज़ा रखने का, इबादत सही अंदाज में अदा करने का। तो इसके लिए ये सब ज़रूरी है। तो बुनियादी तौर पर कम उम्र से ही ये पढ़ाते हैं और चलते चलते बच्चों को हर तरह के, अभी इस्लामी तालीमी बोर्ड इंडिया के मकातिब जहाँ है उसी इलाके में अगर एक स्कूल है तो ये मकातिब में पढ़ाने वाले उस्ताद इस बार पर ज़ोर देते हैं कि बच्चे स्कूल की पढ़ाई नागा करता है कि नहीं, अगर करता है तो उसको समझा बुझा कर स्कूल में बाकायदा भेजने को, वो पढ़ाई आगे बढ़ाने को और साथ कामयाब होने को ये उस्ताद उसको नसीहत देता है। और कंप्यूटर की तालीम और दीगर तकनीयात और ऊंची इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में जो भी है ये सब का माहौल आजकल है। आप केरला के अंदर जामिया मरकज़ ख़ौफ नाम सुना होगा, और नॉलेज सिटी का और जामिया से, यहाँ सब क्या है, हर तरह के असरी तालीम का भी एक बहुत बड़ा माहौल वहाँ है, और ये सब हमारा इस्लामी तालीम बोर्ड का भी हिस्सा है। जी जी। और ये भी कह सकता है कि उस इदारे जो है हमारे ये तंजीम के सिस्टम से चल रहे हैं इंशाअल्लाह। सर एक बातचीत हम करेंगे, जिस तरीके से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो गरीब तबके के हैं और जो पढ़ने के काबिल नहीं है, उसके घर वाले नहीं पढ़ा सकते हैं, और वो इसमें तो कोई फ़ीस वगैरह चार्जेस तो नहीं है? नहीं, ये तालीम के अंदर कोई फ़ीस वगैरह नहीं है, कुछ नहीं है। और गरीब बच्चों के लिए क्या कुछ सुविधा है? गरीब बच्चों लेके देखिए, मोहल्ले में, मस्जिदों में और हमारे मकातिब में असातिज़ा पढ़ाते हैं कुछ कम तनख्वाह में। जी जी। कम तनख्वाह में, कम रोज़ी रोटी लेते हैं उन लोग। और स्कूल की सर्जियों के जैसे हमारा बहुत उम्दा तनख्वाह का सिस्टम ही नहीं है। यानी उस्ताद का भी खिदमत गरीबों के लिए है, ये तालीम के ज़रिए ये पैगाम है। तो खुलासा बच्चों को पढ़ाना और उनको तरक्की देना, गरीबों का तवज्जो होना। तो यहाँ अभी हिरा, आइवा हिरा जो इदारा है यहाँ हमारा जगह इस्लामपुर में, तो वहाँ देखिए अभी मैं वहाँ बच्चों से भेंट किया, अल्हम्दुलिल्लाह कितने अच्छे माहौल के हैं। मैं कुछ साल पहले यहाँ आया था, वहाँ सुनसान इलाका था, आज वहाँ आके देखते तो बड़े होशियार के बच्चे। और हमारे नसीहत सुनने के बाद वहाँ एक बच्चा अंग्रेज़ी में अच्छे अंदाज में हमें शुक्रिया अदा किया। तो ये है, गरीब बच्चों के इलाके में, गरीबों के बीच में हम तालीमी खिदमत आगे बढ़ाना चाहते हैं, ये हमें कुछ लेने देने के लिए नहीं है। चलिए, बातचीत हुई, देखिए इस्लामिक एजुकेशन बोर्ड ऑफ इंडिया के डायरेक्टर से मेरी बातचीत हुई, और इनका जो असल मकसद है कि हर गांव हर मोहल्ले में मकतब हो जाए, और मकतब के ज़रिए से जो बेसिक लेवल की पढ़ाई या तालीम है वो बच्चों को मिल सके, और सबसे पहली जो तरजीह दी जाएगी वो है दीनी तालीम, उसके बाद दुनियावी तालीम, और दोनों ही पढ़ाई जाती है और दोनों पे फोकस रहता है। इस्लामिक एजुकेशन बोर्ड ऑफ इंडिया के डायरेक्टर जिस तरीके से बता, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं ये कहना चाहूँगा कि आज से 4 साल पहले मैं जब दिल्ली यूनिवर्सिटी में मास्टर्स कर रहा था, जी जी, वहाँ का एक रिसर्च स्कॉलर था, तो हमारे इस्लामिक एजुकेशन बोर्ड के डायरेक्टर शाहुल हमीद साहब हमें तरबियत दी कि आज से 20 साल पहले एजुकेशन का क्या सिस्टम था कि सिर्फ दुनिया ही पढ़ा जाए, सिर्फ दीन ही पढ़ा जाए। तो इसमें हमारे दोनों बाजू मजबूत नहीं होते हैं। अगर एक डॉक्टर समाज के किसी मकतब से पढ़ के निकला है, उसको बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना आता है और अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ना आता है, किसी मरीज़ को दवाई देता है, वो एक डॉक्टर है, एक संस्कार का एजुकेशन लेके आया हुआ है, एक सफलता का एजुकेशन है उसके पास, समाज का इलाज करता है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के जब दवाई देता है तो रूह को बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की फ़ज़ाइल उसकी इलाज करती हैं और जिस्म को दवाई इलाज करती हैं। आज देखें हमारे पास बैलेंस एजुकेशन नहीं है, सीमांचल में देखें सिर्फ उलमा की भंबार है। आप एडमिनिस्ट्रेशन देखें खाली है, बाहर के लोग आके हमारे यहाँ काम कर रहे हैं, या तो वो स्कूल्स के ही पढ़े लिखे हैं, मिलाद के लिए वो मौलवी ढूंढ रहे हैं। तो हमारे उस्ताद ने कहा कि हमारे समाज में एक ऐसा बेटा हो जो इस देश के आर्मी भी हूँ
वो उस देश के आर्मी के इमाम भी हूँ, वही एक डॉक्टर भी हूँ, और वो मस्जिद के इमाम भी हूँ, वो वकील भी हूँ, यानी तमाम फील्ड के वो, यानी मल्टीपल जो है उसमें जो है इस मकतब और स्कूल के ज़रिए सलाहियत आनी चाहिए। तो उसके लिए हज़रत यहाँ आए और देखा, और ये इस्लामिक एजुकेशन बोर्ड ऑफ इंडिया ये इस वक्त के लिए, इस 21st सेंचुरी के लिए, यानी 2000 इस सदी के लिए एक बेहतरीन पुल है जो हमें दोनों रास्ते से जोड़ता है। कि आप देखें, बच्चों को देखें कि सुबह वो स्कूल जाता है, ज़ोहर तक एक वर्ड भी इस्लाम का नहीं पढ़ता है, फिर ज़ोहर के बाद वो ट्यूशन पढ़ने जाएगा, इसलिए कि वो कमज़ोर हो चुका ऑलरेडी। अगर ट्यूशन नहीं पढ़ता है तो फिर अच्छा वो रिजल्ट नहीं करा पाता है, जिस वजह से उसे चाहिए कि वो ट्यूशन भी पढ़ेगा। बड़े बड़े आप देखें प्राइमरी स्कूल्स में, और देखें आप जो मिडिल स्कूल्स को, चाहे वो प्राइवेट जितने भी स्कूल्स है, उसके प्रिंसिपल और डायरेक्टर कहते हैं कि आप इन्हें ट्यूशन पढ़ाइए। तो 8 घंटा 6 घंटा तो ऑलरेडी स्कूल में पढ़ा, फिर वो ट्यूशन पढ़ने जाएगा तो दीन कब सीखेगा। तो इसमें ये किया जाता है कि आप 2 घंटे के लिए फजर के बाद हमारे यहाँ आए, जब आप दीन पढ़ लिए फिर आप दुनिया पढ़ने जाएँ, यानी दीन भी पढ़ें और दुनिया भी पढ़ें। आप यूरोप को देखिए, और डॉक्टर है, मास्टर है, फिलासफर है, लेकिन उसे कलमा नसीब नहीं होता है। क्यों? उसे सिर्फ सफलता की एजुकेशन दी गई, संस्कार की एजुकेशन नहीं दी गई। हमारे IBI इस्लामिक एजुकेशन बोर्ड ऑफ इंडिया सफलता की एजुकेशन देता है और संस्कार का भी एजुकेशन देता है। इस बोर्ड में कितने लोग लगभग जुड़े हैं? गालिबन हम 25 हज़ार से ज़्यादा लोग इसको काम कर रहे हैं, जे एज ए टीचर्स, फील्ड ऑफिसर्स, डायरेक्टर, हम गालिबन 25 हज़ार से ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं। हमारे पास देश के कितने राज्यों में है लगभग? गालिबन हिंदुस्तान के सूबों में, तमाम सूबों में ये पाए जाते हैं जी। तमाम 28 उत्तर हिमालय से दक्षिण समुद्र तक, और पूरा बंगाल की खाड़ी से पश्चिम कन्याकुमारी तक IBI के जो है लोग काम कर रहे हैं हमारे, माशाल्लाह। और इंशाल्लाह उम्मीद है कि हम इससे बड़ा इनकलाब लाएंगे। सीमांचल में कितनी कामयाबी मिली? हमारे पास इस तो गालिबन मेरे अंडर में 52 से ज़्यादा ब्रांचेस सीमांचल में हैं, 1 साल के अंदर, 1 साल के अंदर में। और भी असातिज़ा दीगर इलाकों में काम कर रहे हैं। इंशाल्लाह उम्मीद है कि तमाम सीमांचल के अक्सर मकाती में हमारी गिरफ्त होगी इंशाल्लाह। सवाबी ऐसे नीयत सवाब की है हजरत, या फिर कुछ और है जी? नीयत सवाबी नीयत से काम हो रहा है, या फिर इसमें कुछ, यानी इस्लाम का नज़रिया है, इल्म जो है बुनियादी तौर पर हर बंदा हासिल करना है। तलबुल इल्मी फरीदतुन अला कुल्ली मुस्लिम मुस्लिमा, अपने जन्नती ज़िंदगी के लिए ये ज़रूरी है। तो इसी पे हम लोग दोनों तरह के तालीम हासिल करके एक अच्छे बाशिंदे की तौर पर दुनिया में भी जीना है, और इस कामयाब बंदे के तौर पर यहाँ तरक्की भी करना है। साथ ही साथ खौफ खुदा और तक़वा पर यानी मरकूज़ एक अच्छी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा नेक इंसान बने। यहाँ इंसानियत के साथ यहाँ ये दोनों तालीम बराबर जारी रखेंगे तो हमारे गांव की तरक्की होगी, क्योंकि पढ़े लिखे बच्चा के ज़रिए यहाँ एक अच्छा नेता, एक अच्छा वो काम करने वाला, और यहाँ चाहे प्रधानमंत्री का हो या राष्ट्रपति का हो ओहदे पर, एक अच्छे अंदाज पे तरक्की करके जब आएंगे मुल्क की तरक्की होगी। तो दोनों तरह की यानी पिछड़ापन की तरफ नहीं है, बल्कि आगे और तरक्की के तरह है इस्लाम की तालीमी नज़रिया इंशाअल्लाह। चलिए, बातचीत हुई, और सीमांचल में जो है लगातार जो है इस्लामिक एजुकेशन बोर्ड ऑफ इंडिया जो है लगातार छाई हुई है। बाकी आपकी क्या कुछ राय है और आपके इलाके की क्या कुछ हालत है, कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और नंबर भी संपर्क का नंबर रहेगा जिसके ज़रिए से आप इन तक रब्ता कर पाएंगे। और जहाँ आपके इलाके में ऐसी हालत है खस्ता हाल, जहाँ पे एजुकेशन की बेहद ज़रूरी है, ज़रूर संपर्क कीजिएगा। फ़िलहाल जय हिंद।